ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਦੱਸੋ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ ਉਸ ਦੌਰ 'ਚ? ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾ ਵੈਸੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਾਸ ਵਸੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਚ। ਸਾਡੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਨਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ। ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ੀਰਾ। ਜ਼ੀਰਾ, ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਂ, ਦਰਿਆ ਇਹ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਸੂਰ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ। ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ 1.5 ਮੀਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਜਮਾਤ, ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਵਾਲਿਦ ਦਾ ਨਾਂ? ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਨਾਂ? ਉਮਰਾ। ਉਮਰਾ ਵਲਦ ਪੀਰ ਬਸ਼ਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੋਈ ਹਮਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂ, ਹਮਸਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਜੇ ਚੰਨੂ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਕਬਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੈਦ ਯੂਨਟ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇਰੇ ਅਰਬੀ ਇਹ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖਰਚ ਕਰਵਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆਣ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਜੇ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਟੁਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਨ 47 'ਚ। ਸੰਨ 47 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਪੋਲਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆਣੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਮਾਦਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ ਆ। ਕੁਦਰਤ ਅੱਲਾ ਦੀ ਐਸੀ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਉਹ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਕਦੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਜ਼ਾ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੰਭਲੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ, ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਇਆ ਉਹਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਸਰ ਦੇ 4 ਫਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਮਿੰਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਬੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਕਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਇਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ, ਯਾ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀ ਚਲੇ ਗਏ। 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛਾਂ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ 30 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ। ਕਦੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਕਦੇ ਪਕਾ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਚਲੋ ਟੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੂ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਧਰੋਂ ਗੱਡੀ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਲਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮ ਨਾਜ਼ਕ ਦਾ ਪਿਓ ਉਮਰ ਅਲੀ ਸੀ। ਉਮਰ ਅਲੀ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਢਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੜੇ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਬਾਹਾਂ ਕੱਪੀਆਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਧਰ। ਅਤੇ ਹੈਡ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ड्राइवर ने। तो मुसलमान फौजी उन्हें बंदूक सीधी कर ली, राइफल आप भी ड्राइवर ने आख्या या गड्डी तोड़ नहीं तेरे गोली मार दूँ मैं। वो फौजी नूं कौन पुछदा भी क्यों गोली मारी तू, उन्हें किसी वजह तो ही मारनी। उन्हें गड्डी तोड़ ली। उन्हें हैल गंडा सिंह टप गए असी तो कसूर तो 4 मील आन के असी ते उत्थे बह गया। उत्थे रोटी पकाई खाधी, पाकिस्तान दी हद च आ गए। हद च आ गए, खुशी आ गई हर बंदे नूं। साडी माई उत्थे फौत हो गई कसूर ही। बस जिथे वादा किसी का आ गया तो इन्नी नहीं हुण जाके तो उत्थे कबर कित्थों लभनी आ। दोबारा नहीं जा सकिया मैं कबर से। भरा सी तिन्ना चो बड़ा मैं हाँ। तो अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ने बच्चे दिते आ, लैक है, पढ़े लिखे। अस तो खैर अनपढ़ रह गए, जिम्मे रह गए, ये पढ़े लिखे बच्चे आ। तो 3 गवर्नमेंट की नौकरी चा अलहमदुलिल्लाह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਗਏ ਜੋ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। हाँ जी, ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ अयूब वाली जंग भी लड़ी तो याही वाली भी लड़ी। याही वाली दे विच कुछ मसला बड़ा तंग आ गया। अरे मैं याही वाली का जख्मी आए, मेरा पासा जड़ा गया है। हाँ जी, यह आस पास हड़ाबी की हड्डी है जिनकी। की वाक्य होया सी? हाँ जी, की वाक्य होया? ये लड़ाई हुई सी बकायदा, जंगो जहद बड़ी। इत्थे पिंडी बोड़ी दा अड्डा है अच्छा जी। जिथों दे आ पट्टी दे विच बैठे लली जट, ओ बंगला नहीं, अब बंगले सामने दुकान पाई है उन्हें। ये उथों दे आए। ਤੇ ਬਾਰਡਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ? बार्डर पिंडी बोड़ी दा अड्डा वजदा सी ते दूदू ਚੱਕ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀਗੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਪਿੰਡ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਿਆ ਉਹ ਵਜਦਾ ਬਾਰਡਰ ਉਹ ਪਿੰਡੀ ਬੋੜੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੌਜ਼ਾ ਪਿੰਡੀ ਬੋੜੀ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਆਹੋ ਚੌਂਡਾ ਦੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਸ਼ਕਲਗੜ੍ਹ शकल ਸ਼ਕਲਗੜ੍ਹ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਮਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗਨ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਖਾਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਫਰੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਾ। ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਹੱਥ ਡਕੇਰ ਕੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਮਰ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 71 वाली 12ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ 17 ਤਰੀਕ ਆਈ, ਸਰਦੀ ਤੂਲ ਦੀ 1971 1971 ਚ। 1971 ਲੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਿਲ ਬਣ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, 2 ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ 2 ਰਾਏਵਿੰਡ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਕੋਲੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਛੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉੱਠੀਏ, ਟੁਰ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਮੈਂ ਨਾਇਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਆ, 1 ਸਾਲ 8 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ ਰੱਬ। ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੜੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਏ, ਸਰਦੀ ਨਾਲ ਛੋਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਉਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। 3 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ ਤੁਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਐਵੇਂ ਖੂਨ ਚੋਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਰਾਤ ਦੀ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਵਿਚਾਰਾ। ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਮੇਰੇ ਐਂ ਆਪਦੇ ਸੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੱਫੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਰੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਲੋਚ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਣ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਜਵਾਨ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੂੰ, ਤਕੜਾ ਹੋ। ਖੈਰ ਮੇਰਾ
मेरी खिल निकल गई। वो ड्राइवर ਨੂੰ कहना बंदा तकड़ा ही, बंदा दलेर ही आखे। ले जी उन्होंने जाके मैनू जीं रथा तो सियालकोट हस्पताल दे विच जाके बेचारियां ने मैनू दाखिल किया। तो वह मैनू कहना मेजर साहब दोस्त मैं तेरी इन्नी मदद कर सकता सी, तेरा खुदा हाफिज। मैं क्या अल्लाह हाफिज। उत्थे भी वो कहते भी नर्स आई, वो आन के उन्हें मेरे हस्पताल के कपड़े पाने सीगे। क्यों हस्पताल दे विच तां पोजीशन हस्पताल का ही होवे ना, मेरे वर्दी सी। वो आन के मेरी पतलून के बटन खोलन पै गई जनानी नर्स। मैं उन्होंने मना किया, जो मेरे पट्टी बच जाती थी ना फिर मैं गल्लां कर लेंदा सी। पट्टी खुल जानी नहीं इलाज कर इत्थों इत्थों हवा निकलती रही 6 महीने इत्थों मूँह चो नहीं। इत्थे उन्होंने डॉक्टर लोग बड़े बड़े काबिल होंदे आ। इत्थों ले जी वो हाय हाय मैं उन्होंने आख्या सिस्टर मैं जवान हाँ तू जनानी हाँ, मेरे पतलून के बटन ना खोल बटन। उन्हें आख्या लाला साढ़े हस्पताल के महकमे ये कोई परहेज नहीं, जनानियां बंदियां दे ऑपरेशन कर दियां, बंदे जनानियां दा ऑपरेशन कर दे। वही सच्ची आई। मैं आख्या बीबी पर तू ना ही खोल, मैं ये कपड़े आप ला देना। मैंने कहनी खड़ा हो जाएगा। मैं क्या हो जाऊँगा। मैं उठ के खड़ो होके पतलून लाई, थले एंटरवेयर आ हमेशा कच्छा थले असी रखते सीगे। ले जी कपड़े मैं पा ले, वो पजामा जा एक वो पा लिया, एक बूट शर्ट की वो पा ली, एक रुमाल बना दिता, उस सराहन से बिछा के मैं फिर पै गया। डॉक्टर आ गया, वो आन के वेख के कहता इस मरीज़ नूं रावलपिंडी भेजो, इहदा इत्थे डेंटल सर्जन है नहीं जानी, इदू तां दंदां दा इलाज इस हल्के का इलाज। डॉक्टर आपो अपनी पोस्ट दे काबल होंदे आ, कोई बांह दा कोई पित्ते का कोई दिल का इवें। ले जी तो ये बंदा नाल दे डॉक्टर जावे, रस्ते दे विच बंदा डेथ ना हो जाएगी, बंदा बहुत कमज़ोर आ। वो सिस्टर जी सी ना वो मेरे खड़ी सराहने जनानी, वो डॉक्टर नूं कहनी डॉक्टर साहब ये बंदा इस जख्म नाल ये नहीं मरदा, इसका दिल तो दिमाग चेक कर ला, दोवें चीज़ां इहदियां ठीक आ, ये बहुत दलेर आदमी है, अल्लाह ने ताकत दी थी और मेरी क्या हस्ती है। हाँ जी डॉक्टर वैसे मैनू फिर वाह हिफाजत तो बेचारे मैनू पिंडी लै गए। उत्थे जाके उन्होंने ये दंदां नूं तारां पाइयां, उस वे दम सारे खड़े सी। इधरली चूठी हिल गई सी ना, क्योंकि आ पासा तो रह ना गया, आ चूठी हिल गई सी। उन्होंने फिर दंद उतले छलने बराबर करके ते वायरिंग कर दी, तारां पातियां। 6 महीने रोटी चावल नहीं खा सकिया मैं। अल्लाह रखने वाला अल्लाह। अज मैं देखदा कि बड़ा अरसा हो गया, बड़े रंग अल्लाह ने विखाए। हाँ जी बच्चे अल्लाह ने मैनू अच्छे दिते, पिछे 6 पढ़े लिखे बंदे आ। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरे ते इन्ना फजल किया, अल्लाह ताला हर एक दे उत्ते करे। आहो वो अपने वो केड़ा जगह सम्मा सट नहीं चमिंडा चमिंडा माल चमिंडा चमिंडे दे विच वो छोड़ के बच गया ना वो। हाँ जी उन्होंने बाहरों यादगार बनाई, पाकिस्तान ने हवेली दी आ, वो टैंक सड़े खड़े, पता नहीं जो कोई भुख आ गई किसी कबाड़ च वेच लैन तो हाले तक है, हाले तक खड़े आ वाकई आ नदी लड़े सी हैं ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ थी ਉੱਥੇ लड़े सी? नहीं मैं चमिंडे नहीं सीगा। अच्छा हाँ नहीं अयूब खान तो साड़ा सदर जो सी, उदों पिछे आ जाइया ये जेड़े टैंक सड़े ना। वैसे उस वेले बंदियां ने बड़ी हिम्मत की सी, मुसलमान जेड़े सी ना फौजी वो टैंकों के थले बढ़ गए सी। हाँ जी बम बन के थले बड़े, बम फटिया
ਸਾਰੇ ਟੈਂਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਪੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ 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 ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਬਾਰਡਰ। ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਝੜਪ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ? ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਜੰਗ? ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸਖਤ ਆ। ਅੱਛਾ। ਬੜੀ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਲ ਛੋਇਆ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਆ ਸੁੱਖ ਸੇ ਦੇਵੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਆਉਣੇ ਆ ਇਮਾਨ ਦੇ ਸਾਥ ਰੱਖੀ ਬਸ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਥੋੜੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਵਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਰੇ ਸੀ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਸਾਕੋ ਜ਼ਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਿਆ 'ਚ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਭਰਾ ਥਾਣੇਦਾਰ SHO ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੁਨਬਾਈ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ 'ਚ। 30 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, 30 ਮੀਲ ਪਿੱਛੇ। ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਤੁਰ ਕੇ, ਦੂਏ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸੇ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਵੇਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਲਕੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਖੂਹ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸੂਰ ਆਏ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਈ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮਹੀਨੇ 2 ਜਾਂ 3 ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਉਹਦਾ ਨਾਂ, ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੀਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਾਰਸ ਲੈ ਜਾਣ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਈ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈ ਲੈ ਆਉਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣ ਕੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਆਣ ਕੇ ਗਲਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਈ। ਨਈਮ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਚਾਹ ਕੱਪ ਆ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਲੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਲਾ ਮਹੀਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਇੱਧਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਟਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਛਾਪੇ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਆਈ ਮਾਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਭਰਜਾਈ ਆ ਗਈ, ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਵਿਚਾਰੀ ਮਰ ਗਈ ਆ, ਖੱਪ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਬੱਚਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੀਸ। ਉਹ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਥਾਣੇ ਦਾ, ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,
ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗਲਟਰੀ ਪਾ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਦਰਿਆਏ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਬੱਚਾ, ਨਾ ਉਹ ਤਰਨਾ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗਾ। छोटा सा थी। ਛੋਟਾ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ, ਖੀਰ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝੋ। अच्छा ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੰਡਾ ਇਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਅਤੇ ਹੈਲ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਵੇਖੋ 30 ਮੀਲ ਸਫ਼ਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲਈ ਖੜਾ। ਆ ਬਈ ਬੱਚਾ ਦਰਜਾਈ ਰੁੜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਪਛਾਣ ਲਿਆ जिंदाबाद। ਬਈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਬਈ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮਾਈ ਤਾਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਕੈਂਪ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ झूठ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੋਤਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਸ਼ੂਜਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ। ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ DSP ਸੀਗੇ उसे बच्चे थे जो ਨਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਦੇ। गुलाम अहमद थे। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਜਾਣਿਆ DSP ਸੀਗਾ। सही। ਆਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਆਹ ਬੱਚਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ और वही बच्चा अब क्या करता है? ਦਰਿਆਏ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ। वो अब DSP है। ਹੈਂ? अब वो DSP है। ਉਹ ਬੱਚਾ, अच्छा ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਕੜਿਆ ਉਹ DSP ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਅੱਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ सही ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੂਜਾਬਾਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ 'ਚ। सही। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਰੁਕਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 4ਵੇਂ-5ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਜੇ, ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਮੁੜੇ ਆ ਜੇ। सही। ਮੈਂ ਦੇਖੂੰਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ SHO ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦਾ ਧਾਂਕਾ ਜਵਾਨ ਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਪਿਆ ਦੀ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈਂ बिल्कुल। ਹੈਂ मौलाना तारिक जमील। ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਿਕ ਜਮੀਲ अच्छा। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਆਪਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ TV 'ਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇੱਕ ਡਾਂਦ ਘਾਹ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਘਾਹ ਪਾਉਣ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾ ਦੇਣ, ਉਹ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਹਕੀਮ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। 75 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 95 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦਾਦੇ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੇ। ਲੈ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਕ ਚੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਲਿਆਓ ਸੱਦ ਕੇ। ਨੌਕਰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਨੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨੌਕਰ ਦੇ ਦਾਨ ਘਾਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨਾ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਖੜਾ ਸੀ, ਰੁੱਸਿਆ ਖੜਾ ਸੀ। ਰੁੱਸਿਆ ਖੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਾਣਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਖੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਬਿਮਾਰੀ ਬੁੱਝਣੀ। ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। बेजबान जो है। ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ 14-10 हिकमत दा काम। ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਕੰਮ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ, ये बाप दादे दा काम सी। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੋਰਿਆ ਨਾ। अच्छा। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨਵਰ ਦੇਖਿਆ ਆਣ ਕੇ ਹਕੀਕਤ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ, हम्म। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦੱਸੂਗਾ। ਬਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਦਿਲ 'ਚ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੋ ਦਵਾਈ ਆਦਾ
सही बिल्कुल। अच्छा 50 साल हो गए ने काम करदे? हाँ 50 साल हो गए मैंने एक बंदा कम कर दिया। ते रिटायरमेंट तो बाद? आहो रिटायरमेंट तो बाद फिर ये बंदा भी गवाह होऊगा किसी को 2 आने नहीं लाए आज तक। पैसे नहीं लेंगे। अच्छा फीस भी ले ला? फीस भी ले ला नहीं किसी को 2 लगते चारे बीमार दे घरों रोटी नहीं खाधी मैं संगती नाल जिवें ये दोस्त आ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ खा लेनी आ ते बीमार दे घरों नहीं खानी कि 10 रुपये नुकसान करू बेचारा खर्चा करूगा। हाँ जी तकवा है तकवा ये इस तरह गुजरी आ जिंदगी ते अल्लाह ताला अजर दूगा इंशाल्लाह बिल्कुल। तारुफ कराओ बुजुर्ग। जी मोहम्मद नईम ये है मेरे वालिद साहब, जो कि 1941 में इंडिया में पैदा हुए हैं, इंडिया के ज़िला फ़िरोज़पुर में। 1934 में पैदा हुए हैं इंडिया के ज़िला फ़िरोज़पुर में। और जिन्होंने जब पाकिस्तान बना तो इन्होंने फिर हिजरत की पाकिस्तान की तरफ। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम से तो वो इंडिया में हासिल की थी, जो कि प्राइमरी तक थी। और 1947 में इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद हिजरत की, जबकि इधर और उधर काफ़ी कत्ल गैरत का मकाम था। तो जब इन्होंने वहाँ से हिजरत करना शुरू की तो वहाँ हालात काफ़ी बहुत ख़राब थे, कत्ल गैरत बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो इन्होंने काफ़ी मुश्किल हालात में यानी कि सर्वाइव करके ये गंडा सिंह बॉर्डर के थ्रू ये इन्होंने क्रॉस किया है। वहाँ दरमियान में काफ़ी मुश्किलात भी आई और उन मुश्किलात को हल करने के लिए पाक आर्मी गई, जिन्होंने इनको गंडा सिंह बॉर्डर जो है वो क्रॉस करवाया। गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस करने के बाद बल्कि उसी में एक और हिस्ट्री है थोड़ी सी कि इनके साथ एक रिलेटिव थी, फीमेल थी, जिनका एक बच्चा था छोटा सा जो 1 से 1.5 साल का होगा। वो उन्होंने डाकुओं ने लेके उसको दरिया में फेंक दिया था, दरिया सतलुज में। तो दरिया सतलुज में फेंक दिया, वो फीमेल है वो साइड पे हो गई, उसको उन्होंने यानी कि अपनी हिरासत में ले लिया। जब इन्होंने मिलिट्री के साथ गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस किया है तो वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे जो कि उस बच्चे को उठाए हुए थे और आवाज़ें दे रहे थे ये बच्चा किसका है। तो उसी औरत का एक भाई था जिसने कहा ये बच्चा हमारा है, उसने पहचान लिया बच्चे को और अपने पास बच्चे को रखा है। इन्होंने ये गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस किया है और गंडा सिंह बॉर्डर क्रॉस करने के बाद कसूर में कुछ देर के लिए इन्होंने स्टे किया है। वहाँ इन्होंने अपने आप को सुकून यानी कि महसूस किया है, पाकिस्तान में हम इंटर हो चुके हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे जो अंग्रेज़ या हिंदू गए थे उन्होंने जो नलके वगैरह थे, पानी का सोर्स था, उसमें जहर डाली हुई थी ताकि जो भी उसको पिएगा वो बीमार होगा या उसकी डेथ हो जाएगी। तो उसी की वजह से वालिद साहब की वालदा की भी उधर डेथ हुई है, एक छोटी सिस्टर थी उसकी भी कसूर में ही डेथ हुई है। तो जो वो बच्चा एक मिला था कुछ अरसे के बाद, जो औरत थी जिसका बच्चा था वो आई है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जब आई है फिर उसको यानी कि सोर्स से पता चला है कि उधर जो फीमेल आई हुई हैं, तो उन्होंने वहाँ से पता किया, उसके भाई ने जाके तो उसको पता चला कि मेरी सिस्टर भी इधर है। यूँ ही वो सिस्टर को यानी सिस्टर से मिला है, उस सिस्टर ने पूछा है जी मेरा बच्चा कहाँ पे आया। ये चीज़ तो कन्फर्म थी कि बच्चे ने बचना कहाँ था, वो तो दरिया में गया था, लेकिन उसने अपने यानी कि प्यार था, मोहब्बत था, उसने पूछा है। तो जब उसके भाई ने कहा जी बच्चा इधर ही है, फिर भी उसको यानी कि तसल्ली नहीं हुई कि बच्चा कहाँ होगा, वैसे मुझे तसल्ली के लिए कह रहा है। तो जब वो घर आया तो उसने वाकई वो बच्चा उसके पास था, वो बड़ी खुश हुई है, यानी कि खून का रिश्ता था, उसको बड़ा अच्छा फील हुआ है। वो उस बच्चे ने माशाल्लाह जी सर्वाइव किया है, वो बच्चा बड़ा है, उसने पढ़ा है, उसकी तरबियत हुई है। फिर वो एक आला मकान था, पुलिस के महकमे में DSP रहा है। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं वालिद साहब की हिस्ट्री के ऊपर। इन्होंने कसूर में कुछ स्टे किया है जहाँ पे इनके साथ थोड़े से मसाइल भी आए, इनके वालदा की डेथ हुई, सिस्टर की डेथ हुई। उसके बाद फिर इन्होंने मियाँ चन्नू में आके स्टे किया है, जहाँ कुछ साल इन्होंने ऐसा गुजारा है, वहाँ कुछ ज़मीनें भी मिली हुई थी इनको। तो उसके बाद फिर इनको जो ज़मीन मिली है वो मिली है ज़िला मुल्तान, तहसील शुजाबाद, मौज़ा ठाठगलुआ में, जहाँ पे ये भी इलाका गैर आबादी इलाका था, जहाँ पे बहुत से यानी कि मसले मसाइल थे, ज़मीन आबाद नहीं थी। इन्होंने आबाद किए इधर आके, काफ़ी यानी कि मेहनत की है, उसके बाद सर्वाइव किया इन्होंने। उसके बाद वालिद साहब फिर आर्मी में चले गए हैं। 3 भाई थे, वालिद साहब जो है वो आर्मी में गए हैं। आर्मी में इन्होंने 1965 की जंग में शिरकत की है, सियालकोट बॉर्डर के ऊपर। बिल्कुल ये जंग में शरीक थे, जिसको पाकिस्तान ने माशाल्लाह जीता था जंग को, और बहुत दलेराना यानी कि पाकिस्तान फोर्स ने काम किया था। उसके बाद वालिद साहब आर्मी में रहे हैं। फिर 1971 की जंग में जब जंग हुई है उसमें भी वालिद साहब थे। बॉर्डर के ऊपर जब जंग हुई है तो
दुश्मनों ने इनके ऊपर हमला किया है। और जिस जगह पे वाला साहब थे उसके साथ उन्होंने 7 बम मारे हैं, यानी कि एक साइड पे 7 बम मारे हैं। और वो बम एक ही जगह पे मारते रहे, वाला साहब थोड़ी सी साइड पे थे और वो गड़ा तकरीबन 6 से 7 फुट का गड़ा वहाँ पे नीचे यानी कि गहरी ज़मीन में चला गया। और वाला साहब के जो ये जगह है, इस जगह पे बम का टुकड़ा लगा है और ये दांत, ये जबड़ा, ये चीज़ यानी कि बिल्कुल डैमेज हो गई थी। माशाल्लाह वाला साहब ने बड़ी दलेरी का मुजाहरा किया है वहाँ पे। खुद यानी पानी पीते थे तो पानी यहाँ से साइड से निकल जाता था, तो जो भी वाला साहब के साथी थे उनको वाला साहब ने पानी पिलाया है सबको। खुद पानी पी नहीं सकते थे, माशाल्लाह एक जज्बा था। दूसरे जो भी ज़ख्मी थे सबको पानी पिलाया इन्होंने। तो उसके बाद वाला साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है रावलपिंडी में। वहाँ पे इनका काफ़ी अर्सा 2 से 3 साल ट्रीटमेंट रहा है। ट्रीटमेंट के बाद फिर वाला साहब जो हैं वो वापस आए हैं, यानी कि खुराक देते रहे। हाँ जी, वो हाँ जी, उसके बाद वाला साहब फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वापस आए, यानी फिर अनफिट हुए हैं, आर्मी में मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकते थे आर्मी के रूल के मुताबिक। तो उसके बाद ही वाला साहब यानी कि हम जो भी थे 6 भाई हैं वो पैदा हुए हैं। तो वाला साहब ने यहाँ पे आके अपनी मेहनत शुरू की है। काश्तकारी से ही ताल्लुक़ रहा है ज़्यादातर वाला साहब का। और इसके अलावा फ़ी सबीलिल्लाह ये वाला साहब थे, इनके वाला साहब थे, ये जानवरों की हिकमत करते थे फ़ी सबीलिल्लाह माशाल्लाह। उसमें किसी किस्म की कोई चीज़ लेनी देनी नहीं। फ़ी सबीलिल्लाह जहाँ भी होता था अपने सोर्स से जाते थे और लोगों की खिदमत करते थे। तो उसके साथ साथ हम 6 भाई थे। हमारी परवरिश बहुत आला यानी तरीके से इन्होंने की है। दीन और दुनिया के लिहाज से बहुत आला तालीम की तरफ लेके गए हैं। इस्लामी तरीके से हमारी परवरिश की गई है और आला तालीम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम इस चीज़ के ऊपर फ़ख्र है कि इस इलाके में जहाँ पे 3 से 4-5 किलोमीटर तक भी स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। तो वाला साहब ने बड़ी मेहनत की, हमें स्कूल भेजा, हम जाते रहे। तो आज माशाल्लाह हम 4 भाई जो हैं MA की हुई हमने और बहुत अच्छी जॉब के ऊपर हैं, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, इस तरह के में अच्छे महकमों में गवर्नमेंट जॉब के ऊपर मुलाज़म हैं हम। तो बाकी माशाल्लाह हमारी काश्तकारी का जो शोबा है उसके साथ साथ चलता आ रहा है। बाकी माशाल्लाह वाला साहब की एज अब 80 के करीब है, लेकिन फिर भी दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। कोई भी चीज़ आप पूछेंगे वो बिल्कुल आपको पूरी हिस्ट्री, ये इनकी ज़बानी है जो हिस्ट्री में आप बता रहा हूँ आपको, पूरी हिस्ट्री उनको याद है। सिर्फ मसला अब ये है कि थोड़ा सा नज़र का मसला है, इस वजह से थोड़े से वो परेशान भी रहते हैं कि नज़र का मसला है। लेकिन फिर भी इस एज के लिहाज से बहुत माशाल्लाह फिट हैं। तो अपना यानी कि चलना फिरना ये सर्वाइव करना है और हमें फुल सपोर्ट करते हैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। हर लिहाज से सपोर्ट कर रहे हैं और ये सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है। इनकी ख़ास बात माशाल्लाह यही है कि कोई भी ये इनकी एक बड़ी खुश होते हैं कि कोई भी गेस्ट इनके पास आता है तो इनको खुशी फील होती है। और हम जितना भी इनको कंफर्टेबल माहौल देते हैं कि हम AC दें, कूलर दें, घर में इंतज़ाम करते हैं, लेकिन ये कहते हैं जी मैंने बाहर इसी पीपल की छांव के नीचे बैठना है और बहुत खुशी फील करते हैं। और जब ये अकेले बैठे होते हैं तो इनको फ़ील हो रहा था मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यानी सुकून दे नहीं हूँ। जब भी कोई मेहमान आता है या किसी का सुन लेते हैं तो बहुत खुश होते हैं। यहाँ इस एज में भी यानी कमज़ोरी है, सारा कुछ है, कोई भी इनको लेने के लिए आ जाता है तो इनके दिल ये इनकार नहीं करता कि मैं उनके साथ ना आ जाऊँ। हम कह रहे होते हैं कि आपको कमज़ोरी है, आप ना जाएँ, बाद में तकलीफ़ होगी, लेकिन इनकी यही कोशिश होती है कि मैं खिदमत कर रहा हूँ फ़ी सबीलिल्लाह और मैं जाऊँ। और इस चीज़ में बहुत बड़ी माशाल्लाह खुशी फील करते हैं। और ये वाला साहब का माशाल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह काम जो है और दिल से कर रहे हैं, इसमें कोई किसी किस्म का लालच इस तरह की नहीं है। और माशाल्लाह इस इलाके में जो परवरिश हमारी की है वालिदैन ने, और उस चीज़ को भी बहुत यानी मैं फ़ख्र फील कर रहा हूँ। पूरे इलाके की हिस्ट्री चेक कर ली जाए, 6 भाइयों को एक बहुत आला तरबियत देना, और इस इलाके में जहाँ पे कुछ सहूलियात भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद हम उस मेरिट पे, उस कंफर्टेबल सीटों पे ड्यूटी कर रहे हैं जो बंदा सोच भी नहीं सकता यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ी सब क्रेडिट जो भी है ये वालिदैन को आया जिन्होंने मेहनत की है। अदरवाइज़ और लोग भी यहाँ पे हैं लेकिन इन्होंने अपनी ख़ास तौर पे इस चीज़ के ऊपर मेहनत की है। हमारी कौम के बंदे हैं जिनके बच्चे सारे अनपढ़ हैं। मेरे से अल्लाह ताला ने ऐसी मेहरबानी की थी, एक बच्चा मुल्तान पढ़ लिया, एक बौलपुर, एक लोधना, अल्लाह खर्चा पूरा करता रहा बस। माशाल्लाह जी, बस अल्लाह ताला अजर देता है, अल्लाह ताला। अच्छा, इलाके में राठ क्यों मशहूर है? ये राठ की हिस्ट्री जो हमारे वाला साहब है ना, इनके वाला साहब थे बाबा उमरा, उनसे चली आ रही है। ये हमारी हिस्ट्री आ रही है हिंदुस्तान से ही आ रही है। उन्होंने यहाँ पे कोई ऐसा कारनामा किया था दलेराना, यानी पे वहाँ पे ना, जैसे वाला साहब बताते हैं कि वहाँ पे यानी कि जो हिंदू होते थे उनका होल्ड होता था या अंग्रेज़ों का होल्ड होता था, तो
उनको एक को कोई टारगेट दिया गया था कि ये बंदा हमें तंग कर रहा था, ये हम पार्टी हमें तंग करती है, तो उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड किया था। तो वहाँ से ये इन्होंने को फिर लकब कहलें दिया गया था राठ का, और वहाँ से चलता आ रहा है। आज भी आप इलाके में पूछेंगे तो ये 2-3 घर जो हैं ये राठ ही के नाम से चलते आ रहे हैं। वो हमने नाम पूछा ना, नाम कोई नहीं जानता कभी। वो राठ साहब, हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल फौजी राठ, हाँ जी, वो वहाँ पे दे रहा है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे। हाँ जी, और वो जो नाम है वो किसी को पता ही नहीं। हाँ जी, नहीं आप 2-2, 4-4 किलोमीटर साइड से जहाँ से भी पूछेंगे ना वाले साहब का नाम अली मोहम्मद फौजी राठ, तो आपको वो क्लियरली बताएंगे और जानते होंगे, क्योंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह। किसी के साथ वाले साहब की कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह का कोई भी नहीं है माशाल्लाह। फौजी राठ, हाँ जी, हाँ जी, फौजी राठ, हाँ फौजी राठ, फौज से माशाल्लाह गाजी हैं जी, जख्मी हैं। हाँ जी, हाँ जी, अल्लाह ताला ने सेहत दी है, हीरो है हमारे, जी हीरो हैं 71 के। हाँ जी। अंदर बंदा बैठे हैं और ये हिस्ट्री हम ना 6 सितंबर होता है या 14 अगस्त होता है, जो हिस्ट्री हम टीवी पे देख रहे होते हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ कर रहे थे वाला साहब हमें, यानी कि वो एक आंखों देखा हाल जिस तरह होता है पूरी खुद, यानी कि एक दिमाग भी है ना, ये जाए दिमाग काम कर रहा है। कोई भी चीज़ पूछेंगे आप, किसी तरह का सवाल करेंगे तो वो हिस्ट्री आपको सही मिलेगी बिल्कुल, और टू द पॉइंट मिलेगी माशाल्लाह। बड़ा अल्लाह ताला करम करे, सेहत दे इनको, दुआ करें आप भी। आंखों का मसला है उसमें परेशान रहते हैं ये, अल्लाह ताला मजीद इनको सेहत दे, सलामती दे। हाँ।